Okay, so as we have already discussed that exercise or which one for 8.1 in last class. So today we will be discussing about exercise 8.2. So let us start with it. Exercise 8.2. Okay, see basically this exercise is all about hundreds. ओके ये जो है ना मैंने कल भी तुम लोगों को बता दिया था वैसे हंड्रेड, ठीक है। जैसे कल हमने बात की थी जब मैंने लिखा था टेंथ, तो मैंने टेंथ को क्या लिखा था, टेंथ लिखा था मैंने 1/10, दैट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 10। जब हम बात करेंगे हंड्रेड्थ की, जब हम हंड्रेड्थ की बात करते हैं तो हंड्रेड्थ में हम क्या लिखते हैं 1/100। ओके, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी है ना, लास्ट क्लास में हम ये डिस्कस कर चुके थे। सो दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास ऑल्सो। तो टेंथ 1/10, हंड्रेड 1/100। अब ये होता क्या है, कैसे होता है, सी इफ आई एम राइटिंग 27.46, see if I am writing this thing 27.47, then I told you that there are two sides, one is on the left side of the decimal, this is the left side, and one is on the right side of the decimal, this is the right side. So when we are talking about left side, we start reading from which place, ones, then tens, like this. ओके, बट वेन वी आर गोइंग टू द राइट साइड ऑफ द डेसिमल, देखो जब लेफ्ट जाते हैं तो हम वंस, टेंस, हंड्रेड लाइक दिस, बट इफ वी आर गोइंग टू द राइट साइड दैट मीन्स वी आर टेकिंग टेंथ, ओके दिस वन वी आर टेकिंग टेंथ, देन हंड्रेड्थ, okay this one we are taking as hundredth. Okay, so these things you have to clearly means mention these things, that if we are reading anything on the left side we are reading ones, tens, hundred like this kind of place value, and if we are reading right side that means tenth, hundredth, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। अब देखो अगर मैं इसको 27.47 अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखता हूँ तो मुझे वर्ड्स में क्या लिखना पड़ेगा, आई विल बी राइटिंग 27 point, what I will be writing, 47. yes I will be writing 47, I will be writing 47 not 47, क्योंकि मैंने कल भी बताया था when you are reading आफ्टर द डेसिमल, देखो डेसिमल के राइट साइड वाले जब नंबर्स को रीड करोगे यू विल बी रीडिंग देम सेपरेटली, एक एक करके रीड करोगे, ऐसा नहीं कि उसको 47, नहीं वो 47 है, बिकॉज 4 इज एट 10th प्लेस, 7 इज एट 100th प्लेस, ठीक है। तो सिंगल सिंगल रीड करना है। सी इफ आई एम राइटिंग वन मोर नंबर, मैं एक और नंबर यहाँ पे लिखता हूँ 138.91. Okay, if I am writing this one, so that means what I will be reading this one, see it is ones, tens, hundred, so that means it is 100, 138, 38, देखो 138.91, okay 138.91, this I will be writing, मैं ये लिखूंगा यहाँ पे 138.91. ओके, सो दीज थिंग्स यू हैव टू मेंशन, ये चीज़ें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि मतलब ये सोचो कि सर ये 138.91 कैसे आया, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है तुम्हें कि 138.91, क्योंकि देखो हम इस वाले नंबर को तो कंप्लीटली रीड करते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड लाइक दिस, बट आफ्टर द डेसिमल इसको हम कैसे करेंगे, सिंगल सिंगल, ओके नॉट इन कंबाइन वे। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू लर्न। Now let us continue. See, if you are given with a number, suppose you are given with 0.37 and you have to write it in place value table, place value table, you have to write this thing in place value table. So 0.37, how you will be writing,
you will be writing like this. It is ones, then tens, then 100. Okay, then this side it is 10th, then 100th. Okay, so that means from this number you will see here it is decimal. So decimal के left side it is which place? ones. So ones पे क्या लिखेंगे? 0. then 10th place पे क्या लिखेंगे? 3. then 7 को कहाँ पे लिखेंगे? at 100th place. Same if you are given with 437.21, then see this 7 will go where? It will go at ones. This 3 will go where? At tens. This 4 will go where? At 100. This 2 will go where? At 10th. And this 1 will go at 100. So this is the way you will be writing in place value table. Place value table में लिखने का यही एक तरीका होता है. Okay, now let's discuss one thing. जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. If you are given with a question like 3 plus 5 by 10 plus 7 by 100, now how you will solve it? कैसे solve करेंगे इसको? कैसे लिखेंगे in decimal form? decimal में इसको कैसे लिखा जाएगा? How we are going to write it in decimal? decimal में लिखना है ना. So it will be, देखो 3 plus 5 by 10 को हम क्या लिखते हैं? 0.5. मैंने कल भी तुम लोगों को बताया था 5 by 10. That means if there is 0, 0 will take this 5, so it will be 0.5. So that means it is 3 plus 0.5, then 7 by 100 is there. देखो 7 by 100. So 1 0, this 0 will take what? 7. Then this 0, there is no number, कोई number नहीं है ना, तो 0 and then decimal. Here it is. So 0.07. Now we have to add. अब हमें add करना है. So it will be how much? 3.57. मैंने कल बताया था कैसे ऐड करना है. 3. देखो इसके बाद इसके पास कोई डेसिमल नहीं है, तो हम यहाँ पे खुद से डेसिमल लगा लेंगे. 3 के बाद यहाँ पे एक डेसिमल लगा दो. ठीक है. अब 0.5 डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाओ, बिल्कुल डेसिमल के नीचे डेसिमल. 0 then 5 then 0.07 अगेन डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाओ. 0.07. So the answer will be 753. So it will be how much? 3.57. This will be our answer. Okay, there is a question for you. The question is 600 plus 9 by 10 plus 3 by 100. Okay, this is the question for you. Try to solve it and write your answer in chat box. देखो एक बार इसको देखते हैं अब सॉल्यूशन. 600 plus 9 by 10 3 by 100. So what will be the answer? So let's check it. It will be 600 plus 9 by 10 will be written as 0.9 and 3 by 100 will be written as 0.03. So when you will add all these, इन तीनों को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा? 600 plus 0.93. This will be our answer, 600.93. So this is the way you can solve. ऐसे solve कर सकते हो तुम लोग. Okay, let's discuss the next thing, that is, देखो मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बताया था if you are having 2.3 then between which two numbers it will lie on number line. Between which two numbers 2.3 will lie on number line? किस किस के बीच में lie करेगा? You will say sir it will lie between 2 and 3, है ना. 0 1 2 3, क्योंकि ये क्या है? 2.3 है. So it lies between 2 and 3 and it is nearest to 2. ये भी तुम लोगों को पता है, it is nearest to 2.
इट विल लाई बिटवीन 2 and 3 एंड इट इज नियरेस्ट टू 2। देखो ये चीज तो हो गई व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वंस प्लेस। जब हमने वंस प्लेस की बात की, वंस प्लेस का क्या मतलब है, सी दिस इज द वंस प्लेस, दिस वन इज द वंस प्लेस। तुम लोगों को अच्छे से पता है व्हेन वी आर राइटिंग वंस, टेंस, यहाँ पे हम लिखते हैं टेंथ, देन हंड्रेड, ओके, लाइक दिस वी राइट ना। जब हमने बात की बिटवीन वंस प्लेस की, सी इफ आई एम राइटिंग 1.7, 1.7, तो तुम चेक करोगे कौन से वाली प्लेस को चेक करके बताते हो, विच प्लेस यू चेक टू फाइंड आउट बिटवीन विच टू नंबर्स इट इज, यू चेक वंस प्लेस। You will say sir 1.7 is in between 1 and 2, 1.7 जो है वो 1 और 2 के बीच में आएगा। You are checking the ones place, but now the question is how to check between 10th place, 10th place, 10th place को कैसे चेक करते हैं, देखो 10th place को कैसे चेक करेंगे। Suppose you are given with a number 3.76, तुम्हें एक डेसिमल नंबर दिया 3.76 एंड यू हैव टू चेक बिटवीन विच टू नंबर्स, बिटवीन विच टू 10th प्लेस दिस नंबर विल एग्जिस्ट, कौन से दो 10th प्लेस के बीच में करेगा। देखो बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं। यू हैव टू चेक फॉर 10th प्लेस ना, देखो क्वेश्चन जो है वो कौन सी प्लेस को आस्क कर रहा है, कौन सा पूछ रहा है वो 10th प्लेस। Okay, so you have to look for 10th place. What is the 10th place here? 7. So you will draw a number line. तुम एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। यहाँ पे तुम क्या लेके जाओगे 3.7। देखो मैंने क्या किया है, मैंने वंस प्लेस को तो एज इट इज रखा है, वंस को कुछ चेंज नहीं किया, और मैंने क्या किया साथ में कौन सी प्लेस ले ली, यहाँ पे मैंने ली 10th प्लेस। तो देखो मैंने 3.7 और हम इसके आगे लगा लेंगे 0। देखो ये हो गया 3.70, देन 3.71, देन 3.72, देन 3.73, देन 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.79 के बाद क्या आएगा 80। अब इसको ना ध्यान से देखो, हमने जब 10th प्लेस, वी आर टॉकिंग अबाउट द 10th प्लेस, जब हमने 10th प्लेस को स्टार्ट किया था तो हमने 10th प्लेस को स्टार्ट कहाँ से किया था, 7 से। वी हैव स्टार्टेड 3.7 और हमने एंड कहाँ पे किया है 3.80। तो तुम लोग जब यहाँ पे लिखोगे व्हेन यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर दैट इट इज इन बिटवीन, किसके बीच में आ रहा है ये 3.76, देखो ये रहा हमारे पास 3.76 यहाँ पे, एंड इट इज इन बिटवीन 3.70 एंड 3.80 एंड टू विच इट इज नियरेस्ट, किसके ज़्यादा पास है ये 3.80 के या 3.70, सो इट इज नियरेस्ट टू 3.80। ओके, सो दिस इज द वे, जस्ट वेन एवर यू आर लुकिंग फॉर 10th प्लेस। देखो अगर क्वेश्चन में 10th प्लेस लिखा हुआ है ना, तो तुम लोग क्या करोगे 10th प्लेस के अकॉर्डिंग ही चेक करोगे। ओके, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, हम एक और एग्जाम्पल इसका देखते हैं। सपोज वी आर गिवन विद 4.73, या हम 7 वाला ले चुके हैं ना, तो 4.43 ले लेते हैं हम, 4.43 हम फिर से 10th प्लेस के लिए चेक करेंगे। अगेन आई विल ड्रॉ अ नंबर लाइन, एक नंबर लाइन में ड्रॉ करूंगा। फिर देखो वंस प्लेस के लिए नहीं चेक कर रहे हैं हम, वंस प्लेस के लिए नहीं कर रहे ना, हम किसके लिए चेक करने वाले हैं 10th के लिए, ठीक है। तो 10th प्लेस क्या है हमारा 4, तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा 4.40, फिर 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49 एंड 4.50। दैट मीन्स देखो अब यहाँ पे ध्यान दो, हमने देखो
जब चेक करना स्टार्ट किया 10th प्लेस से, तो 10th प्लेस से मैंने 4.40 लेके स्टार्ट किया था, और 4.43 मुझे कहाँ पे मिला, ये रहा 4.43, है ना। तो दैट मीन्स व्हाट, 4.40 एंड 4.50 के बीच में, तो दैट मीन्स यू विल बी राइटिंग हियर 4.40 एंड 4.50, इन दोनों के बीच में हमें क्या मिल रहा है, इन दोनों के बीच में मिलेगा 4.43, एंड इट इज नियरेस्ट टू, किसके ज़्यादा पास है, 4.50 या 4.40, इट इज नियरेस्ट टू 4.40। सो दिस इज द वे यू विल बी डूइंग, ऐसे करना है तुम लोगों को। 4.40। एक बार ना एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि जीरो वाला एक भी एग्जाम्पल हमने नहीं देखा है। देखो अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे 0.23, अब अगर जीरो आ गया तो तुम कहोगे कि सर जीरो से कैसे, देखो हमें कुछ नहीं करना है, हमें फिर से वही, हमें कौन सी पोजीशन से मतलब है, 10th वाली से, क्योंकि हमें क्वेश्चन में उसने बोला है 10th प्लेस के अकॉर्डिंग चेक करना है। तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, 0.2 के साथ क्या लगाऊंगा, 0, फिर 0.2 के साथ 1, 0.2 के साथ 2, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29 and 0.30, दैट मीन्स 0.23, 0.23 किसके बीच में आएगा, इट विल बी इन बिटवीन 0.20, ये जो 0.23 है वो आएगा 0.20 एंड 0.30 के बीच में। सो इन बिटवीन you will be writing in between 0.20 सर आप क्या लिख रहे हो, वो and 0 दिखाई नहीं दे रहा है सर। and 0.30, so it will be there in between 0.20 and 0.30, so that means and which number it is nearest to, जब हम nearest की बात करेंगे तो वो किसके nearest आ रहे हैं, 0.23, देखो यहाँ पे है 0.23, it is nearest to 0.20, ये इसके nearest आएगा, ठीक है। सर तो ये चीज़ें ध्यान रखना है तुम लोगों को कि किसके नज़दीक आता है, किसके पास में, किसके बीच में, 10th प्लेस का ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, नाउ वी विल सी हाउ टू कन्वर्ट इन डेसिमल्स, सॉरी इन फ्रैक्शंस, डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शंस में। हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन, सी फॉर दिस इफ वी आर गिवन, देखो अगर हमें दिया जाता है 0.65, ओके 0.65, दिस इज व्हाट वी आर गिवन एंड वी हैव टू कन्वर्ट इन फ्रैक्शन, एंड ऑल्सो आई टोल्ड यू टू रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, रिड्यूस इट इन लोवेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना मीन्स उसको कैंसिल आउट करना, ठीक है, उसको जहाँ तक पॉसिबल होता है कैंसिल आउट भी करना है। तो पहले तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, देखो हमारे पास पॉइंट ये रहा, ठीक है 0.65, आफ्टर द डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, 2 डिजिट्स, 1 2, सो दैट मीन्स वी विल बी राइटिंग इट 65 divided by 100. Why I am taking 100 here? Because after the decimal we are having these 2 digits, so that means we are taking 2 zeros. तो हमने 2 जीरो लिया. Now we will cancel it by 5. हम directly 5 से cancel करेंगे. So it will be 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. 13 के टेबल में आता है ना 5 पे 65. Then 5 2 जा 10 and 0. So what will be our answer? 13 by 20. क्योंकि अब ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता है. 13 by 20 is our answer. एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो 0.08. Suppose this is given 0.08. Then what we will be doing? We will be taking 0.08. See, after the decimal, how many digits? 2 digits. So it will be 8 by 100. Now cancel it out. 2 4 जा 8. 2 से 100 को डिवाइड करेंगे 50 आएगा. फिर से कैंसिल. 2 2 जा 4. 2 से 50 को कैंसिल करेंगे 25 आएगा. सो आंसर कितना आया? 2 by 25. ऐसे ही देखो एक और लेते हैं.
1.35. Suppose this is given 1.35. So after the decimal again 2 digits are there. So it will be 135 divided by 100. So again cancel it out by 5. 5 से इसको divide किया, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 0. So what answer we are getting? 27 by 20. This is the answer we are getting, 27 by 20. So this is the way you will be converting decimals to fraction. कैसे कन्वर्ट करना है? पहले जितनी डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद उतना ही जीरोज लेना है, उसके बाद उसको कैंसिल आउट करना है. यू कैन कैंसिल इट आउट ईजिली. ये एक दो क्वेश्चन जो मैंने छोड़े थे यहाँ पे 8.2 स्टार्टिंग क्वेश्चन देखो. कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ दीज बॉक्सेज एंड यूज डेसिमल. बड़ा सिंपल है, वैसे तुम लोग करोगे तो. देखो मैं ए पार्ट कराता हूँ. देखो ए पार्ट टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेज जो है ना यहाँ पे, देखो ये ए पार्ट में जो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेज हैं वो 100 हैं. टोटल कितने हैं? 100. हर एक लाइन में कितने बॉक्स हैं? 10. देखो अगर ये 100 कंप्लीट होता, अगर ये पूरा कंप्लीट होता तो हम इसको क्या ले लेते? 1 बॉक्स. 100 आउट ऑफ 100 हो जाता ना. देखो ऐसे होता है. मैं तुम्हें यहाँ पे एक वो दिखाता हूँ, इसको डिलीट करके. यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम प्लेस वैल्यूज, वंस, टेंस, 100 और इधर 10th, इधर 100. ठीक है. अब देखो इसमें मैं यहाँ पे ना एक बॉक्स बना रहा हूँ, सेम वही वाला जो हमें दिया हुआ है, उसी टाइप का एक बॉक्स मैं यहाँ पे बनाऊँगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर लास्ट में 10. ऐसे ही हमारे पास देखो ये हमारे जो हैं पूरा एक पार्ट था. पहले क्या था? पूरा कंप्लीट 1. उस 1 के हमने क्या किए? कितने पार्ट किए? 10. तो देखो अगर मान लो मैं इसको क्या कहता हूँ, मैं सिर्फ इसमें से ना एक पार्ट शेड कर देता हूँ. हाँ सपोज मैं इसमें से एक पार्ट जो है अभी शेड करूँगा. देखो मैंने ये वाला पार्ट शेड कर दिया. तो इसका मतलब कितने पार्ट? देखो इसका मतलब मैंने किया है क्या? 1 पार्ट आउट ऑफ 10. और 1 पार्ट आउट ऑफ 10 का क्या मतलब होता है? हम इनमें से कौन सा लेते हैं? हम लेते हैं 10th. 1 पार्ट आउट ऑफ 10, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं 10th की. अच्छा अब मैं देखो क्या करने वाला हूँ. बट आई एम टेकिंग, आई विल टेक अनदर लाइन्स. मैं और लाइन्स यहाँ पे लगाता हूँ. कैसे? देखो 1 2 3 then 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 10. अब देखो अब ये टोटल बॉक्सेज कितने हैं? 100. ठीक है. अगर मैं कहता हूँ मैंने सिर्फ 100 में से मैंने सिर्फ ये वाले बॉक्स शेड किए 1 2 3 4. So what you will be writing? You will be writing it as 4 upon 100, है ना? Because out of these 100 boxes, how many I have shaded? 4. Now I have shaded 4 out of 100. अच्छा देखो अगर मैंने 4 out of 100 किया है, that means where I will be writing this 4? कौन से वाले place value में लिखूंगा मैं इनमें से? 100. I will be writing here and others. बाकी सब में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? 0 0 0 0. So what will be our answer? हम डेसिमल कहाँ पे लगाते हैं? देखो डेसिमल लगाते हैं वंस के बाद. वंस के बाद लगाते हैं ना. So what is our answer? It is 0.04. 0.04. क्यों आया 0.04? क्योंकि देखो हम टेंस और वंस की तो बात ही नहीं करते हैं जब वंस जो है हमारा 0 है ना, ये वाला पार्ट 0 है. सो दैट मीन्स व्हाट? वी विल बी टेकिंग 0.04. अच्छा ऐसे ही मान लो मैं अभी क्या कर रहा हूँ,
मैं इसको ना इस वाली लाइन को कंप्लीट शेड कर देता हूँ। ओहो, आई विल शेड इट कंप्लीटली, ठीक है। और इस वाली लाइन में भी मैं शेड कर रहा हूँ, इसमें भी शेड किया मैंने लाइक दिस, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या किया इसमें, देखो ये पूरे क्या हो गए 10, एक 10 वाली लाइन पूरी शेड है, दूसरी भी 10 वाली लाइन पूरी शेड है। सो दैट मीन्स व्हाट, 10th में हम कितना लिखेंगे, अब 10th में वी विल बी राइटिंग 2। 10th में 2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे देखो कंप्लीट 10 बॉक्सेज शेडेड हैं, यहाँ पे भी कंप्लीटली 10 बॉक्सेज शेडेड हैं। दैट मीन्स 10 वाली लाइन में हम क्या लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग 2। अच्छा यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ये जो 5 बॉक्सेज हैं ये टोटल 100 में से, सो दैट मीन्स 100th में हम क्या लिखेंगे 5। सो इट विल बी हाउ मच, व्हाट विल बी आवर आंसर हियर, एनीवन टेल मी, इट विल बी 0.25, 0.25 है ना। सेम केस, 0.25 सेम केस वी विल बी टेकिंग। देखो अब एक और चीज़ ले लेते हैं, यहाँ पे हम एक और चीज़ देखते हैं। अगर मैं इसको भी कंप्लीट शेड कर देता हूँ, मैं इस वाले को भी कंप्लीट शेड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिया 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ क्या होने वाला है, वी विल बी राइटिंग, देखो सबसे पहले 10th में देखो, 10th में कितना लिखेंगे 1 2 3 4, 10th में लिखेंगे 4, क्यों, क्योंकि 4 बॉक्सेज जो हैं वो कंप्लीटली, देखो ये 10 कंप्लीट हैं, ये 10 कंप्लीट, ये कंप्लीट, तो 4 बार हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी हम 4, सो दैट विल बी हाउ मच, इट विल बी 0.44। सो दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसको ऐसे ही करना है। देखो इसमें 1 2 2 कंप्लीट हैं, 1 2 3 4 5 6 जो हैं वो हैं, तो दैट मीन्स यू विल बी राइटिंग हाउ मच 0.26, क्या लिखोगे 0.26। अच्छा जो ये कंप्लीट, ये 100 आउट ऑफ 100 है, तो 100 आउट ऑफ 100 को हम क्या लिखेंगे वंस में, 100 आउट ऑफ 100 को वंस में क्या लिखेंगे 1। जैसे ये बी पार्ट है ना, चेक दिस बी पार्ट, यहाँ पे बी पार्ट में ये पूरा है, इसको किस में लिखेंगे वंस में, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 1। फिर 10th में क्या लिखा जाएगा 1 2 3, 3 लिखा जाएगा 10th में। और 100th में कितना लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, सो हाउ मच इट विल बी 1.38, 1.38। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग, ऐसे सॉल्व करना है।